Welcome to our podcast series on freedom from violence. So, when we talk about gender based violence, most of us immediately think about violence against women. We think of domestic violence, dowry harassment, or sexual assault, etc. But gender based violence is bigger than that. It also affects people who do not fit into the society's idea of what a man or what a woman should be. Today, in our first podcast, we want to talk about violence faced by transgender and LGBTQIA plus persons, especially in the context of Jharkhand and India. To help us understand this better, we have two guests with us. Firstly, Purnima ji. Today, we are honored to welcome Purnima ji, a resilient individual from Bihar who overcame her early displacement due to gender non-conformity. Through perseverance and mentorship, Purnima ji pursued education and built a professional career with Tata Steel. Alongside this, Purnima ji actively works with JQC, that is Jharkhand Queer Community, advocating for the health, legal rights, and dignity of transgender persons and promoting a more inclusive society. Moving on to Priyank ji, we are delighted to welcome Priyank ji, an active and passionate member of JQC, currently working as an operator at Tata Steel in Jamshedpur. Priyank Ji is deeply involved in advocating for LGBTQ rights and works tirelessly to support the community. Their dedication and resilience are truly inspiring, and we are honored to have them join us today. Thank you, both of us, for joining us today. So, moving on with the first segment of the podcast. So, we will here understand the core problem in the whole community. So I'll start with a basic question from both of you. So I want to bring this closer to daily life now because sometimes we use big words like structural violence or systematic oppression. But I want people to understand what this actually means. So, dear guests, can you please walk us through an ordinary day in your life when you step out of your house, when you go out at a shop, when you travel in public transport? What does it feel like? Is there always a fear or there is awareness that something could happen? पूर्णिमा जी और प्रियंक जी, मैं आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ. सो जी, मैं जी। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जैसे आप बाहर निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, तो मतलब क्या आपको कुछ डर रहता है या फिर पब्लिक में अब इसको लेके अवेयरनेस हो चुकी है? अ, पब्लिक में लेके अभी कोई ऐसा अवेयरनेस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी आप देखोगे तो उतना नहीं है। जैसे रात को 8 बजे के बाद मैं बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि अ, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल रहता है हमारे लिए। ऐसा होता है जैसे कि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो ये मुझे मेरे माने जो मेरे लैंडलॉर्ड है, उससे लेके रात को सोने तक मुझे हर कोई हैरेस करने की कोशिश करता है। जैसे इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं ये दे रही हूँ। जैसे सपोज़ दैट मैं जैसे अभी एक ऑटो से आ रही थी, मुझे यहाँ जेपीसी आना था। ये अभी सडनली की बात बता रही हूँ। तो जैसे मैं आ रही थी गाड़ी से, तो इतना जाम लगा हुआ था कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी आई हुई थी। तो मैं एक ऑटो ले ली, ऑटो से मैं आने लगी, उन्होंने कहा अंदर-अंदर पहुँचा देंगे। वो पता नहीं वो अंदर-अंदर मुझे किस गली में ले गया, ले जाने के बाद बोलता है कि चलिए ना थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं ऐसे-वैसे। तो मैं बोली कि ये क्या करे, आप जानते हो मेरे बारे में, मैं कंप्लेन करूँगी। बोलते आपका कंप्लेन कौन सुनेगा? तो कहने का मतलब है ये जो ट्रांस पर्सन के लिए जो हरासमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा माने स्थिति ट्रांस की बहुत ही दयनीय है। माने आप खुल के नहीं जी सकते हो। आप भीड़-भाड़ इलाकों में तो ठीक है, आराम से रह सकते हो, जा सकते हो, लेकिन किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते हो जहाँ पे लोगों की कम है। आप जिस शॉपिंग मॉल जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको सबसे पहले तो ये करते हैं कि उम, देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग ये माने कि कोई चीज़ बायर कर पाएँगे कि नहीं। किसी अगर जैसे मैं अभी किसी यहाँ रेस्टोरेंट में खाने जाती हूँ, तो वो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि ये पे कर पाएँगे कि नहीं? तो कई बार लोग आते हैं, मैं आपके बदले पे कर दे रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लोग हमें आज भी जो है वो बहुत ही दया दृष्टि के भाव से देखते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते। हम भी इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट जी सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी नहीं देते हैं लोग।
ये अवसर नहीं देते हैं कि आप खुल के जी सकते हो। अभी भी हमें रात को आप 8 बजे के बाद, यहाँ मैं झारखंड की स्थिति बता रही हूँ, मैं नहीं निकल सकती हूँ। वो 8 बजे के बाद शरीफ से शरीफ आदमी पता नहीं कब वो अपनी असलियत हैवान बन जाए, ये मुझे इस चीज़ का डर लगा रहता है। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी में रहती हूँ तो कि कब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन सिस्टम अच्छा है बोल के उतना डर नहीं है। लेकिन रात में वही बाहर निकलती थी पहले, तो बस नहीं मिलती थी, ऑटो से जाती थी, तो बहुत इम्पॉसिबल सा था। तो मैंने ज़्यादा पैसे दे के ऑटो बुक किया, वो ऑटो मुझे लेने आया करती थी। तो ये ना लगा रहता है कि ट्रांस के लिए कोई माने एज ए ट्रांस पर्सन, जो ट्रांस हैं, जो लोगों के सामने खुल के हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये बहुत यानी कि दुख की बात है कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर एक्सेप्ट कर भी रहा है तो हमें शायद वो एक बोले, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो शायद वो मुझे एक सेक्स वर्कर की तरह देख रहा है। चाहे मैं वो करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन वो मुझे उस नज़रिए से देख रहा है कि शी इज़ अवेलेबल फॉर वेरी ईज़ी, मैं इसे बहुत आसानी से पा सकता हूँ, 2 400 500 इनको दे सकता हूँ। मैं अगर स्वाभिमान से जीना चाहूँ तो मुझे शायद जीने ना दिया जाए। इसका ये कारण है। मैं अभी टाटा स्टील में जॉब कर रही हूँ, तो मैंने इसके पहले भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, क्योंकि मुझे अपॉर्च्युनिटी होने के बाद भी जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांस हूँ इसीलिए। तो अभी भी बहुत ये दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है। सुबह आप उठे, आपके लैंडलॉर्ड ने भी आपको बहुत बातें बोली कि आप रात में देर से आते हो, कहाँ जाते हो? उनके मन में भी एक शक लगा रहता है कि 10 बजे घुसी तो शायद ये किसी टोल नाके पे खड़े होके कुछ गलत काम करती होगी। जैसे हमारा साढ़े 10 बजे छुट्टी होता है ऑफिस से, नाइट शिफ्ट, बी शिफ्ट में हूँ अभी। तो 10 बजे छुट्टी होगा, आते-आते 10:20 10:25 हो जाएगा। अगर कभी 11 बजे घुस गए तो उसे लगेगा कि नहीं, ये किसी स्टॉल पे खड़ी थी, वहाँ से आ रही है। साड़ी पहन के अगर बन-ठन के निकल रही तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद ये किसी होटल में बुक होने जा रही है। माने ये उनके शायद उनके बचपन से ही उनको ये सिखाया गया है, बताया है, उन्होंने ऐसा देखा है कि वो ये समझ ही नहीं सकते कि हम पढ़े-लिखे लोग भी हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ अपने माने इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। नहीं, उनको है कि ये कुछ गलती करेंगे, सही ये नहीं कर सकते। ये दिन की शुरुआत माने बहुत ही पेनफुल होती है, रात को 12 बजे तक, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर वही दिन तो वैसे ही जाता है, ऐसा कुछ खास नहीं है चेंजिंग। ओके पूर्णिमा जी, प्रियांक जी, आप लोगों ने अभी तक जो भी बताया, तो एक दो इंसिडेंट है जो मेरे दिमाग में ऐसे छप सा गया है कि पहला कि लैंडलॉर्ड की तरफ से परेशान करना, या फिर हॉस्पिटल जाना, वहाँ पे सही से टेस्टिंग ना हो पाना, या फिर पुलिस के पास आप लोग जाते हो कंप्लेंट लेकर तो उनका सही तरीके से रवैया उनका सही नहीं रहता आपकी तरफ। तो मेरा क्वेश्चन ये अगला है आप लोगों से कि क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमारे पास लॉ है जो आपके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बस वो कितना ऑन पेपर है बस, और एक्चुअली में आपको कितना वो सपोर्ट कर रहा है लॉ, और अ, उस लॉ के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप लोग ऐसे हो कि आपको मतलब अच्छी बात है कि आप दोनों है, तो आप दोनों को ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल पा रहा है, ये बात करने के लिए। लेकिन कम्युनिटी के कितने लोग हैं जो अभी तक कम्युनिटी का मतलब भी सही से नहीं जानते, और लॉ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, उनको तो ये तो पता भी नहीं है अभी तक। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि लॉ एक्चुअली आपको कितना प्रोटेक्ट कर पा रहा है आपके राइट्स को? लॉ के हिसाब से अगर जाएँ तो कानून के हिसाब से, जैसे मैं हमारी एक ट्रांस वुमन के साथ एक पुलिस वाले ने हैरेसमेंट किया था, बहुत ब्रूटली हुआ था उसके साथ। तो हम सब गए थे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, वहाँ गई थी मैं, वहाँ पे बातें-वातें की थी, थोड़ा हाई लेवल पे बात हो गई। तो उनको भी पता नहीं है ट्रांस लॉ के बारे में। एक होता है ना, माने ट्रांस के जो भी कानूनी अधिकार है उन्हें पता होनी चाहिए, उनको भी नॉलेज में नहीं है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन कराने की बात की थी। तो ये तो सेशन की बातें अलग हुई, लेकिन ट्रांस लॉ के बारे में उन्हें भी नहीं पता है, और मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में कोई खुल के बात करना चाहता ही नहीं है। आप एक छोटी सी एक वाक्य बता रही हूँ, जैसे कि कहीं पे मैं एक जगह जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे क्या बात हुई कि वुमेन्स जो हैं वो मेंस का अधिकार मार रही हैं। मर्द यानी औरतें जो हैं, जो यहाँ काम कर रही हैं, उनको क्या है, वो शादी करेंगी, अपने घर चली जाएँगी, उनके पति कमाएँगे, उनको खुश रखेंगे। औरत को कमाने की ज़रूरत ही क्या है? इसकी वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, मर्दों को काम नहीं मिल रहा है। ये थी, माने बहुत ही हाई प्रोफाइल वो ऑफिसर थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, ये उनकी सोच थी। एज़ अ ट्रांस पर्सन मैं अगर काम कर रही हूँ कहीं,
तो मेरे डिपार्टमेंट के भी लोगों की यही सोच है ना कि एज ए ट्रांस लीडर, ट्रांस ये आ गई, ये काम कर रही है, तो हम मर्दों जो इतने पढ़े लिखे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो जो ट्रांस काम कर रही, मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ 450 ट्रांस आई थी, गिन चुन के सिर्फ 12-13 ही ट्रांस को अपॉर्चुनिटी मिली, काम कर रही हैं। इसके बाद की जो 400 ट्रांस थी, 430-35 जो ट्रांस बची, वो कहाँ गई? उनको तो काम नहीं मिला ना। तो उसमें से कई को मैं आज भी देखती हूँ कि सेक्स वर्क कर रही हैं, कईयों को देखती हूँ कि आज भी बेगिंग कर रही हैं, कईयों को देखती हूँ कि आज भी वो टॉल पे जाके रात में टॉल मांग रही है। और लॉ की बात की जाए तो कानून के बारे में अभी जो कानून के प्रबंधक है उन्हें ही नहीं नॉलेज है कि ट्रांस लॉ है क्या। तो उनको पहले बताना जरूरी है। ये बताना ऐसे नहीं है एज ए ज्वाइनिंग, जब उनकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि ये लड़ाई है एक ट्रांस के लिए, मैंने ये लड़ाई लड़ते लड़ते शायद मैं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद की जो आएंगी आएंगी जो ट्रांस हैं, जो आ रही हैं, कम से कम उनके लिए ये रास्ता बना रहे कि हाँ, इस ट्रांस ने की वजह से इतना सारा हमें सुविधा मिल रही है। तो वही चीज़ है। अब जैसे पुलिस अधिकारी अगर जॉइन कर रहे हैं तो उनको होना चाहिए कि कम से कम उन्हें जॉइनिंग के पहले ट्रांस के बारे में भी उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि हाँ, ट्रांस है। अगर आपके पास ऐसी केसेस आती हैं, वुमेन्स आती है, तो अब ये है ट्रांस के लिए क्या है। सपोज दैट एक छोटी सी बात बता रही हूँ, वुमेन्स के साथ अगर कुछ रेप होता है तो उसके लिए बहुत सारी कानून है। अगर मैन के साथ रेप होता है तो उसके लिए क्या कानून है। 18 साल के पहले हुआ तो ठीक है, वो थोड़ा छोटा सा कानून है। 18 साल के बाद वाले का क्या होगा? एज ए ट्रांस लीडर, मैं बाय बर्थ मेल हूँ, अगर मेरा रेप हो रहा है, मैं क्या करूंगी? मेरे लिए क्या लॉ है? इसका कोई लॉ नहीं है हमारे लिए। इसके लिए कोई हमारे कानून व्यवस्था में इसके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं कि माने कि एक ट्रांस, आज मैं तो एज ए ट्रांस में पूरे सर्टिफाई हूँ, सर्टिफिकेट है, एज ए ट्रांस वुमेन है, वो ठीक है। जो सर्टिफाई नहीं है, जो समाज के डर से अपनी सेक्सुअलिटी को छिपा के रखे, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहाँ जाएंगे? अभी मैं खुद दिल्ली की, मुंबई का ऐसा कुछ कहाँ का केस देखी थी, 3 बच्चे के बाप का पकड़ के बस में रेप कर दिया, उसके लिए कोई लॉ है ही नहीं। मतलब एक मैन के साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। आप देख लो कानून की किताबें खोल के पलट के। तो ये सब चेंजिंग जो है हमारे संविधान में होनी चाहिए। हमारे लिए देखो कैसा है ना, हमें वोट देने का अधिकार है, हम अपने लिए अपने नेता चुन सकते हैं, लेकिन वो नेता हमारे लिए कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो हमें तो शायद कूड़ा करकट समझते हैं कि हाँ, जाने दो जाने दो। तो कहने का मतलब है, जब हमें वोट देने, तो हमें वोट देने का अधिकार भी छुड़वा दो, मत दिलाओ। और जब वोट देने का अधिकार छुड़वा देंगे तो हमें तो जीने का भी अधिकार छीन लेंगे। मतलब इंडिया में रह भी नहीं सकते, यहाँ से बाहर जाओ, जैसे कि अमेरिका में अभी हुआ, वहां से थर्ड जेंडर के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें हम लोग लॉ के बारे में अब बात करेंगे। सो डू यू नो अबाउट नवतेज सिंह जोहर जजमेंट दैट decriminalized the homosexuality, and has this decision changed anything in your daily life? Do you feel safer now? इसको मैं हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो 2018 में जो नवतेज सिंह जौहर जजमेंट आया था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, तो इस डिसीजन के बाद क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है और क्या आपको अब ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है इस जजमेंट के बाद से? देखो, ऐसे तो अगर मैं बोलूं कि ऑन कैमरा हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। रियलिटी क्या होती है, आप रात में 9 बजे 8 बजे आप जाओ किसी भी पुलिस स्टेशन में और उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उनका होगा, कहाँ से किया, कहाँ तुम्हारे साथ, माने अगर तुम्हारा बलात्कार भी हो तो किस जगह से बलात्कार हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया। पहला क्वेश्चन कि कोई बदलाव नहीं, कोई किसी तरह का हमें कोई अधिकार नहीं मिला है। कोई जजमेंट सिर्फ जजमेंट तक ही है। हाँ, हमने ट्रांस के लिए ये किया, ट्रांस के लिए किया। हाँ, हमारे मान लीजिए जैसे कि सेम सेक्स मैरिज नहीं है और एडॉप्शन नहीं है, जैसे हम कोई बेबी अडॉप्ट करना चाहे तो एडॉप्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनहेरिटेज, मतलब बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स है जो जिसको बता पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक काम करो, आप सिर्फ थाने जाओ, आप बोलो कि मैं एक ट्रांस मैन हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, झूठा फेक केस करो। सिर्फ फेक केस करो कि मैं इस जगह से आ रहा था, 4 लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मेरा रेप कर दिया, मुझे रिपोर्ट लिखाना है। वो देखो, वो 4 लोग किए नहीं, 40 लोग करेंगे मिलके। कहीं किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, जजमेंट सिर्फ किताबों में ही रखा हुआ है। और यहाँ पे ट्रांस लोगों के लिए कोई जजमेंट है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि जब तक, पर
अब चांस को ही नहीं लेंगे, सेम सेक्स भी है तो उसमें भी वही प्रॉब्लम है ना। उनके लिए भी यही प्रॉब्लम होता है कि जजमेंट के इस पे लिया जाए तो प्रॉब्लम है, और लोगों को लगता है कि ट्रांस थोड़े से एग्रेसिव हम लोग नहीं होते हैं, हमारे अधिकार नहीं मिलता है तो हम लोग अपना गुस्सा कहाँ दिखाएं। तो इसी वजह से हमें रोड पे उतरना पड़ता है, हमें बैनर लेके जाना पड़ता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अगर हमें इजिली सब कुछ मिल जाए तो हमसे ज्यादा सभ्य और हमसे ज्यादा मन अच्छे लोग इस धरती पे कहीं नहीं मिलेंगे, जो एक औरत को भी समझते हैं, एक मर्द को भी समझते हैं, और समाज को अच्छे से लेके चलते हैं। So, Priyank ji, if someone is listening to this podcast and is going through the same which you went through, if they are feeling alone, trapped, hopeless, where can they turn? What resources exist for them? So, अगर कोई ये जो पॉडकास्ट देख रहा है, वो उसी समय से गुजर रहा है जिस समय से आप गुजरे हैं, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो कहाँ जा सकता है, किसको कांटेक्ट कर सकता है? जो मैंने मतलब अपना बचपन से अभी तक जो फेस किया, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फेस करे। वो सामने आके बात करे, उसी से बात करे जो उसको फील फ्री हो, उसको महसूस हो। उसको फील फ्री महसूस हो, आप डालसा से जॉइन कर सकते हैं। कोई भी एनजीओ हो, आप एनजीओ में जाके बात कर सकते हैं। एनजीओ में जाके आप अपने बारे में बोलिए, या फिर हम लोग को जैसा जितना है उन लोगों से बात करिए, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा। पर हाँ, ये बोलेंगे अपने सबसे पहले हम लोगों को घर से रिजेक्शन आता है, तो घर में अपने आप को बंद ना रखें। जब तक बंद रहेगा ना, उसको खराब-खराब चीज़ उसके माइंड में आएगा, जैसे मेरा भी आया था। वो ओवरकम हम कर लिए, पर हम नहीं चाहते कि वो सेम सेम चीज़ जो हम मेरे बाद में भी जो भी है ट्रांसपर्सन वो आए, तो ना आए। आप लोग बात कीजिए, जहाँ पे आपको फ़ील फ्री लगे, आपको सेफ फ़ील हो, कहा यहाँ पे जाके अगर हम बात करेंगे, ये बात बात करने में कुछ सॉल्यूशन आएगा, वहाँ पे जाके बात करें। कोई एनजीओ हो सकता है, किसी से कोई ट्रांस पर्सन हो सकता है, वो को ट्रांस मैन हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, एलजीबीटीक्यू का कोई भी पर्सन हो, अगर वो सेफ फ़ील फ्री करे, वहाँ पे जाके बात करे। क्योंकि अगर बात नहीं करेगा तो उसका वो नहीं कैसे जानेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसका नीड है, क्या वो सोच रहा है। अगर जैसे मैंने भी किया, मैंने भी जब मेरे सबसे पहले तो मेरा मेरा खुद का काउंसलिंग मैंने खुद किया। फिर जाके किसी डॉक्टर से, किसी साइकियाट्रिस्ट से मैंने बहुत बार काउंसलिंग करवाई, बहुत बार। ये क्वेश्चन तो मैंने मेरे घर में ही क्वेश्चन किया कि मैं ऐसा क्यों हूँ, आप लोग क्यों मतलब इसको सॉर्ट आउट नहीं किए? मैं ऐसा क्यों हूँ? आप लोग क्यों नहीं बोले? मैं उल्टा क्वेश्चन किया मेरे घर पे। तो सबका ऐसा नहीं होता कि हाँ, ये लोग बहुत एकदम कूल है, ऐसा नहीं होता, सब कूल नहीं होता। नो मैं देख के ना, बाहर का देख के ना अंदर का दुनिया को मत सोचिए। आप बा बाहर का दुनिया बाहर से तरफ नहीं देखिए, अंदर का दुनिया अंदर के जैसे देखिए। आप जब तक बात नहीं करेंगे उसके मन में क्या चल रहा है, क्या-क्या फेस किया, कैसे पता चले? सब ऐसे ही मतलब ओपिनियन दे देते हैं, ऐसे ही जजमेंट कर लेते हैं। ऐसा ना करें। कोई भी पर्सन जो भी हो, अगर वो अलग से फ़ील कर रहा है कि मैं एक गलत बॉडी में एक सही सोल में जन्म लिया हूँ, या फिर सही सोल में गलत बॉडी में जन्म लिया हूँ, जो भी हो, वो अगर सोचे, अगर वो सोचता है, उसको अगर फ़ील आए ना, ऐसा नहीं किसी के प्रेशर में, ऐसा नहीं है। सबसे पहले खुद के ही फ़ील आना चाहिए कि हाँ, मैं जैसे मेरा फ़ील आया कि मेरा सोल ठीक है, पर मेरा बॉडी गलत है, और मैंने बहुत साल तक ये झेला, अपने आप को झेला। वो सब ना सोच के भी बहुत खराब लगता है, अभी भी खराब लगता है। फिर समाज का, फिर घर का, ये सब के बारे में आप अगर सोचेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, और भी दर्द आएगा। खुद का तो दर्द है ही, उसमें और भी नहीं। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी का दर्द होता है, हर किसी का प्रॉब्लम होता है। जो एक मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, हम लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। 2 लाइफ़ जी रहे हैं, 2 जेंडर जी रहे हैं, और बहुत सारा गॉसिपिंग आ रहा है, बहुत सारा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ये कर रहे हैं।
तो यही बोलेंगे, कोई भी भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, आप लोग अगर ऐसा फील करते हैं, तो आप लोगों को जहाँ पे लगे कि ये मेरा सेफ प्लेस है, जहाँ पे हम बात करने से बात बहुत जन बोलते हैं, बात बहुत जन बोलते हैं, सुनने वाला भी चाहिए कि सुन के भी वो काम करे कि हाँ, इसका प्रॉब्लम हम सुने, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है? भाषण बहुत सारा बहुत देते हैं, सब नहीं सुनते, बहुत रेयर पर्सन सुनते हैं। तो यही बोलेंगे कि आप लोग अपने आप से पहले काउंसलिंग करें, अपने आप में झाँके कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपका जो चाहत है, जो आपका नीड है, जो आप चाहते हैं, फिर उसको वहाँ पे जाके बोलिए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, ये मेरा बात सुनेगा। सुनने के बाद कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वही बताएगा। वहाँ पे जाके बात करें। बस यही सबसे कहना चाहते हैं। आप लोगों से भी यही, अगर आप लोगों से भी कोई बात करे ना, तो आप लोग भी मन से सुनिए। कान से जो नहीं सुनना होता है, वो आवाज़ भी कान तक जाता है। जो मन से सुनते हैं, ठीक है? वो कान तक नहीं, दिल तक, माइंड तक वो स्टे हो जाता है। तो यही आप लोग से भी यही है कि आप लोग भी करें। काफ़ी अच्छी बात प्रियांक जी ने कही कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट, राइट? जी, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, क्योंकि जी। बहुत हिम्मत से लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हुँ, दे आर नॉट फिटिंग इन द सोसाइटी, राइट? हुँ। लेकिन उनको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लिसन टू पीपल। मतलब जी, you actually don't know what a person is going through in his life or in her life. So it is very important. तो प्रियंक जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ने अभी बात की, मतलब बहुत सिस्टम फेलियर की बात की हमने। हमने हुँ। सेक्शन 377 के बारे में बात की। हमने आपकी पर्सनल लाइफ में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी बात की। तो अगर आप एक चीज़ चेंज करना चाहें, वेदर इट इज़ लीगली, सोशली, तो वो क्या चेंज होगी और वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? अगर कुछ मेरे हाथ में अगर होगा ना कुछ चेंजिंग का, तो हम बोलेंगे जैसे सब समान है एज़ ए ह्यूमन, सब, अगर आप इंसान हैं, आपका जेंडर मेल है, कोई और है जिसका जेंडर फीमेल है, बस मेरा जेंडर है कि मैं ट्रांस हूँ या फिर थर्ड जेंडर, जो भी है, ठीक है? सबको इक्वली होना चाहिए। भारतीय हम सब है, आपके पास आधार कार्ड है, वो भी नेशनल, मेरे पास भी सेम है, किसी और के पास, फीमेल के पास भी सेम है। तो हम लोगों का जब आइडेंटिटी प्रूफ जो है, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, सब कुछ एक है, एक राइट्स है, एक ही जगह पे हम लोग बिलोंग करते हैं, एक ही देश में, खाली स्टेट अलग है, लोकेशन अलग-अलग हो सकता है, भारतीय है ना, तो मेरे ख्याल से सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। और जैसे आपको मिलता है, जैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है कि यहाँ पे इतना सीट है बॉयज़ के लिए, ये इतना सीट है गर्ल्स के लिए, वहाँ पे सेम है कि हाँ, इतना ट्रांस के लिए, बस यही होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें अगर वो काम के लिए लड़का 10 तो चाहिए, लड़की क्यों 5 तो, शायद वो काम के लिए 5 तो ही लड़की ही चाहिए, लड़की वाला काम के लिए। तो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं कि ये सम्मान पूरा जो है, इक्वल, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें इक्वली होना चाहिए। सब कुछ में मतलब सब कुछ में। आपका शिक्षा केंद्र में, आपका हेल्थ केयर में बोलिए, आपका जैसे नॉर्मल लाइफ जैसे लीड करते हैं, जॉब बोलिए, फिर आपका पीएच बोलिए, जहाँ पे ना नॉर्मल लाइफ जैसे लीड करते हैं आप। आप अगर कहीं पे जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका जेंडर पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। आपको मेल में ही रखेगा, मुझे कहाँ पे रखेगा? आप बताइए, कहाँ रखेगा? मैं तो एक तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ, तो मुझे कहाँ रखेगा? आपके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हालाँकि मैं एक तो फीमेल के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, कहाँ रखेगा? इसलिए तो कभी-कभी सोचते हैं तो कि कभी भी कुछ ऐसा ना आए कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़े। एक्सीडेंट बोल के नहीं आता, हो सकता है मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ होगा, भगवान करे शायद किसी के ना हो, किसी के साथ भी ना हो, कहाँ रखेगा? एजुकेशन में एक साइड में जो कोएड कॉलेज हो, स्कूल हो, एक साइड में मेल, एक साइड में फीमेल, कहाँ र
वो फिर थर्ड जेंडर कहाँ बैठेंगे? उसके लिए कहाँ पे सीट है? मेल में बैठेंगे कि फीमेल में बैठेंगे? आपका बैंक में, मेरा खुद का प्रॉब्लम हुआ है। कितने दिन से मैं ये बैंक का खाली नाम चेंजिंग का, जेंडर चेंजिंग का प्रोसेस में हूँ। अभी भी ठीक नहीं हुआ। अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है। कब तक होगा? बैंक पे अभी अवेयरनेस नहीं है। जब हम गए थे, ठीक है, बैंक पे, चलो प्राइवेट बैंक में तो भी सुनते हैं, एज़ ए क्लाइंट की तरह के हाँ, थोड़ा-सा क्या प्रॉब्लम है सुनते हैं। सरकारी बैंक में कौन सुनेगा? सुनते भी नहीं है। आपका सब में अगर इक्वालिटी चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, हम बोलेंगे सबके लिए समान अधिकार हो, सब कुछ में मतलब ईच एंड एवरी। I guess with this, we have come to the end of this first episode of the podcast series. So definitely, we have learned a lot of things from this podcast. We are taking away a lot of things. If we talk about Article 14, right to equality, Article 19, right to employment, everything looks very superficial. But in real life, if we look into it, how much it is actually in process, how much it is actually getting executed. So that is quite questionable thing to talk about. So, Priyank ji, on behalf of Center for Legal Aid Program at NUSR Rachi, I thank you for joining us, for sharing your insights. पूर्णिमा जी को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो उन्होंने भी ज्वाइन किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा, एंड we'll definitely look forward to collaborate and work on the topics which we feel कि ज़रूरत है आज की, एंड बहुत कुछ एक्चुअली सीखने को मिला आज की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, जैसे कि मैंने उस समय भी बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, एंड बहुत कुछ है कि ऑन पेपर सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है कि हाँ, सबके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा है, ये अभी भी सवाल है बहुत बड़ा सबके सामने। तो बस ऐसे पॉडकास्ट करके या फिर बातें करके ये चीज़ सुधारी नहीं जा सकती। और अगर बात भी करना है तो लार्ज गैदरिंग को एड्रेस करके कि उन्हें अवेयर करवा पाए कि उनके राइट्स है क्या। तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दिस, एंड फ्यूचर में वी वांट कि हम लोग कोलैबोरेट करें एंड फिर इस चीज़ पर और साथ में काम करें। Thank you so much, Priyank ji, for joining. The question is, Anandita has been a part of CLAB in the past 3 years, and she knows that we have been working on mental health in our previous semesters. So, Priyank and Purnima was continuously talking about suicidal thoughts, attempt to suicide, right? So, what do you think that uh, do people really commit such an act, or at times we have also seen instances where we filed reports, and we have also documented that people did so in order to attract sympathy. So, do you really think that something as important as gender identity pushes a person to such an extent that he tries to end his life? Ananda? This meeting is being recorded. So I'll repeat my question. In the past 3 years, 3 to 4 years, we have been working a lot on mental health, awareness on mental health, right? So, continuously, Purnima and Priyank were talking about attempt to suicide and suicidal thoughts, right? So, do you guys feel that gender identity is in itself that important that if not recognized, it pushes someone to that extent that he tries to end his life? So, if you ever get a chance to work upon mental health, what would you like to do and how would you like to contribute in raising awareness? So what I believe is, as Purnima and Priyank sir has said, that gender identity sometimes can be one of the most crucial part of yourself. As he said, that sometimes you feel that your soul is in a wrong body. So you can imagine how deeply connected it is. We say our pronouns by feeling it that we are a man or a woman. But when these people do not even get a chance to feel the way they want, do live the way they want, it can affect the mental health in a way that we cannot imagine. So what we as law students or as a legal aid center can do is have campaigns around it, because this particular aspect of mental health is always ignored, that how these people feel and how these people are negligently treated every time. And therefore we should have campaigns, we should have this meetings, resource meetings. We can have, like, we can collaborate with the central organizations for psychiatry, we can collaborate with the people who are in the who are psychologists, and also they
do therapies to these people and connect them to a good platform. And we as a law students can do that, and we can have these type of meetings, we can have these type of campaigns in our university.